बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, एज यू नो इस सेमेस्टर में हम कंप्यूटर ग्राफिक्स का कोर्स जो है वो पढ़ेंगे और फर्स्ट हाफ में हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे और फिर सेकंड हाफ में हम प्रैक्टिकल जो हैं वो भी इंशाल्लाह करेंगे। सो कमिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, let's start by defining computer and computer graphics. You have made yourself pretty much comfortable with the definition of computers. You have been working with it for quite some time now. They accept, process, transform, and present information. And computer graphics involves technology to accept, process, transforms, and present information in visual form that also concern with producing images or animations using a computer. Or in general, or in short, you can say computer graphic is all about computer generated images and animations. Why should we study computer graphics? There are certain important reasons to study computer graphics. We will discuss them in one by one. The first one is visualization. Well, being human beings, we are all visual creatures. For us, a picture is worth 1,000 words, and we want to show others what we are doing. And to start with, we would like to see what we are doing. That is why computer graphics should be learned. Computer graphics is interesting. As I said earlier, being visual creatures, visual moving objects, graphics, pictures, they move us more than words. They have a greater impact on us than words. And they are interesting. Take a look at whatever we have in the entertainment part. Their industries provide us animations, special effects, movies. They are all interesting. Let's take a look at the course outline that we would be covering during semester. We would be, of course, having done with the introduction of the subject, moving on to some of the hardware that is available and is used in the field of computer graphics. And then we will not be talking about different applications like CorelDRAW, Maya or AutoCAD, how to make use of them. We will talking about the very basic of the subject. We will start our discussion with the concept of point, how that is displayed, a line, how that is drawn, circles, and then we will take a break and will discuss basic mathematics that we need to know before moving more complex computer graphics programming. So we will be discussing some object filling concepts, some filling algorithms will be discussed. Attribute of filling concept would be discussed. We'll talk about transformation and different types of transformation. We also discussing drawings in 2 dimensions, 3 dimensions,
एंड सो ऑन। इस तरह और चीज़ें जो हैं वो भी साथ साथ इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और आफ्टर दैट फिर हम सेकंड हाफ जो है सी लैंग्वेज जो है उसमें हम अपनी कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है उसके कुछ फंक्शंस और देखेंगे कि कैसे जो है हम सी लैंग्वेज को यूज़ करके अपनी ग्राफिक्स जो है वो बना सकते हैं। सो let's talk about some of the graphics application. Multiple different areas in which computer graphics are being used. They have been used and would be used in coming days as well. They range for academics, medicine, entertainment, industry, user interface, layout and design, scientific visualization and analysis, art and design, games, etc. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ग्राफिक सिस्टम के बारे में। जितनी भी डेवलपमेंट हुई है कंप्यूटर्स में और कंप्यूटर ग्राफिक्स की फील्ड में, इसने बहुत सारे हार्डवेयर और स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर जो है उनको जन्म दिया। और आज इस सिलसिले में जो एसेंशियल हार्डवेयर हैं उनके बारे में बात करेंगे और उसकी वर्किंग के बारे में भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यानी ग्राफिक्स सिस्टम का जो मेन इंग्रेडिएंट्स यानी डिस्प्ले डिवाइस कैसे बनती है और कैसे जो है ये काम करती है। तो पहले हम वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस, रास्टर स्कैन सिस्टम्स, रैंडम स्कैन सिस्टम्स, graphics monitors and workstations, input devices, hard copy devices, और फिर and then some specialized graphics softwares. तो वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस में जो एक मेन इंग्रेडिएंट है जो हमेशा से चला आ रहा है वो रिफ्रेश कैथोड रे ट्यूब्स है। आज हम रिफ्रेश कैथोड रे ट्यूब्स का स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ेंगे और उसे जानने की कोशिश करेंगे। और फिर उसके साथ रास्टर स्कैन डिस्प्लेस, रैंडम स्कैन्स डिस्प्ले, कलर सीआरटी मॉनिटर्स, डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब्स, फ्लैट पैनल डिस्प्लेस और फिर 3 डायमेंशनल व्यू डिवाइसेस के बारे में भी बात करेंगे। तो चलें रिफ्रेश कैथोड रे ट्यूब जो है इनके बारे में बात स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इनका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे जो है ये काम जो है वो करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है वो कैथोड है, एक कंट्रोल ग्रिड है और एक फोकसिंग सिस्टम है। चलें अब हम इनको डिटेल से भी देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर आपको कैथोड रे ट्यूब जो है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहा है। अब ऊपर वाली तस्वीर में आप देखें तो आपको कनेक्टर पिंस और बेस का हिस्सा जो है वो नज़र आ रहा है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गन जो है वो फिट हुई होती है। और चीज़ों को भी हम थोड़ी देर में तफसील से देखते हैं, लेकिन इससे आगे देखें तो एक फोकसिंग सिस्टम है और उसके बाद मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन कॉइल्स जो हैं वो हैं और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिक बीम जो हैं वो फास्फोर कोटेड स्क्रीन पर हिट हो रही हैं। और इलेक्ट्रिक बीम जब फास्फोर कोटेड स्क्रीन पर लगती हैं तो फास्फोर को रोशन कर देती है। जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन बीम जो है
वो हिट करेगी तो उस जगह पर फास्फोर रोशन हो जाएगा और इससे इमेज जो है वो फिर बनाया जाएगा। अब ये कनेक्टर पिन्स जो हैं ये तो बोर्ड पर कनेक्ट हो जाती हैं और इलेक्ट्रिक गन का फंक्शन ये है कि इसके अंदर एक कैथोड है और इस कैथोड को एक फिलामेंट के जरिए हीट किया जाता है और इसकी हीट से कैथोड जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज करती है और फिर इन इलेक्ट्रॉन्स को फोकसिंग सिस्टम जो है वो फोकस करता है। क्योंकि तमाम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं सो इनको फोकस करने के लिए एक फोकसिंग सिस्टम है और फिर इसके बाद इनको स्क्रीन पर जिस जगह पर थ्रोन या हिट करवाना हो उस जगह पर फोकस करने के लिए एक मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन कॉइल्स का सेट जो है वो इस्तेमाल होता है जो इस इलेक्ट्रॉन बीम्स को हमारी ज़रूरत के मुताबिक स्क्रीन के किसी भी हिस्से पर बमबार कर सकता है। अब ये जो दूसरी तस्वीर है इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो हीटिंग फिलामेंट जिसको जब हम करंट पास करते हैं तो उससे जो हीट जनरेट होती है वो हीट कैथोड को पहुंचती है और कैथोड से फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और फिर इन इलेक्ट्रॉन्स को एक कंट्रोल गेट के जरिए कंट्रोल किया जाता है क्योंकि जब ये रिलीज होते हैं तो फिर ये फैलने की कोशिश करते हैं। अब कंट्रोल ग्रिड का काम ये है कि इनको इकट्ठा करती है और उस जगह ले जाती है जहां से हम इनको एक बीम की शक्ल में आगे ले जा सकें। कंट्रोल ग्रिड के अंदर एक छोटा सा होल होता है तो जितने भी रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सब को इन होल से गुजार कर अगले एरिया में फोकसिंग एनोड जो है उस पर ले आते हैं और फोकसिंग एनोड का काम ये है कि इस इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करेंगे और फिर इससे अगले स्टेप के ऊपर या अगले फेज के अंदर एक्सेलरेटिंग एनोड मौजूद हैं और उनका काम ये है कि वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन बीम को स्पीड अप करते हैं अकॉर्डिंग टू डिजायर्ड एक्सेलरेशन और फिर इन एक्सेलरेटेड बीम्स को हम फास्फोर कोटेड स्क्रीन पर बमबार करके अपनी मर्जी का इमेज जो है वो हासिल कर सकते हैं। सो ये इलेक्ट्रॉन बीम्स का पाथ थ्रू कंट्रोल ग्रिड, फोकसिंग एनोड और एक्सेलरेटिंग एनोड आपने देखा। इस प्रोसेस को एक और तस्वीर से वाज़े करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखें आपको दिखाई दे रहा है कि हीटिंग फिलामेंट जो है वो बैक पर मौजूद है। वो हीटिंग फिलामेंट जब इसमें से करंट पास हो रहा है तो वो हीट जनरेट कर रहा है। इस हीट से कैथोड में से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन फिर कंट्रोल ग्रिड में से होते हुए फोकसिंग सिस्टम के पास पहुंचते हैं और फिर फोकसिंग सिस्टम इनको डिफ्लेक्शन कॉइल की मदद से डिजायर्ड एरिया ऑफ स्क्रीन पर बमबार करने में हेल्प करते हैं। पिछली तस्वीर में हमने देखा कि मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन कॉइल्स जो हैं या यहाँ पे भी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं डिफ्लेक्शन कॉइल जो हैं इनका कंसेप्ट आ रहा है। तो चलें इनको भी साथ थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जहाँ पर बीम को हमने अपनी मर्जी से स्क्रीन पर ले जाना होता है उन मैग्नेटिक कॉइल की वजह से
इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्लेक्शन होती है। और मैग्नेटिक कॉइल्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि ये इस इन्वेलप, जिसको हम शीशे का बना हुआ जो केसिंग है, जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें असेंबल हुई होती हैं, इसको हम इन्वेलप बोलते हैं। और इस इन्वेलप के ऊपर और नीचे दाएं और बाएं टू पेयर्स जो हैं वो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन कॉइल्स के लगे होते हैं। और जब इनमें से करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल किया जाता है बीम को अपनी मर्जी की जगह पर फायर करने के लिए। जिस जगह पर हमने स्क्रीन पर कोई इमेज या टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाना होता है तो उस जगह पर इस बीम का पहुंचना जरूरी होता है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि जब फास्फर को बीम के जरिए बमबार किया जाता है तो वो बहुत थोड़ी देर के लिए रोशन होता है। इसकी इल्यूमिनेशन जो है वो थोड़ी देर में डिसिपेट होने लगती है। इसलिए किसी भी तस्वीर को स्क्रीन पर बरकरार रखने के लिए ज़रूरी होता है कि हम उसे बार बार रिफ्रेश करें। तो इस तरह इस कैथोड रे ट्यूब पर बेस डिवाइस को रिफ्रेश कैथोड रे ट्यूब कहा जाता है। अब इस तस्वीर को देखें स्क्रीन पर, इसमें डिफ्लेक्शन कॉइल्स के 2 डिफ्लेक्शन पेयर आपको नजर आ रहे हैं इन रेड कलर्स, जो कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं। अब हॉरिजॉन्टल का काम ये है, ये बीम को दाएं से बाएं या बाएं से दाएं शिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। और वर्टिकल प्लेट्स का काम ये है कि वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ बीम को डिफ्लेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होंगी। और इसके अलावा बाकी का स्ट्रक्चर उसी तरह आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपको एक बात बताना चलूं कि टिपिकली 1 सेकंड के अंदर तकरीबन 60 से 80 टाइम जो है आपकी फास्फोर स्क्रीन को इल्यूमिनेट करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी फास्फोर का एरिया जिसको हम रोशन करते हैं वो 1/60 सेकंड से ज़्यादा रोशन नहीं रहता। तो हम कंटिन्यूस पिक्चर का इफ़ेक्ट देखना चाहें तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि जो भी इमेज हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो कम से कम उस एरिया को 1 सेकंड में 60 या 80 मरतबा रिफ्रेश किया जाए। और ये काम हम कैथोड रे ट्यूब में करते हैं और फिर इसी से इमेज जो है वो स्क्रीन पर अपीयर होता है। अब हम रास्टर स्कैन की बात करते हैं। Raster scan is the most common type of monitors using cathode ray tube. In raster scan devices, picture is stored in the area called refresh buffer or frame buffer. अभी हम देखते हैं कि refresh buffer या frame buffer का कंसेप्ट क्या है और साथ बिट मैप और पिग्स मैप जो है किसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रिट्रेस और वर्टिकल रिट्रेस में क्या डिफरेंस है, और फिर इंटरलेस्ड और नॉन इंटरलेस्ड डिस्प्ले में क्या फ़र्क है। तो चलें पहले हम फ्रेम बफर की बात करते हैं। जो इमेज स्क्रीन पर हमने डिस्प्ले, जिस इमेज ने स्क्रीन पर डिस्प्ले होना होता है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो रिफ्रेश बफर या फ्रेम बफर में पड़ी होती है। अब अगर एक कॉमन सी एग्जांपल में अगर हम देखें तो जो इमेज हमें डिस्प्ले करना है स्क्रीन पर
वो ब्लैक एंड वाइट है। तो इस किस्म की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमें सिर्फ एक ही बिट पर पिक्सल के लिए दरकार होगी। इस बिट में ये इंफॉर्मेशन होगी कि क्या इस पिक्सल को रोशन करना है या इसे डार्क ही रहने देना है, और जिस जगह पर हमें 1 मिलेगा उस जगह पर फास्फर को बम्बार करेंगे और उसे रोशन करेंगे, और जहां पर 0 मिले उसे हम वैसे ही छोड़ देंगे। तो रिफ्रेश फ्रेम बफर के अंदर ये इंफॉर्मेशन इस तरह से स्टोर होती है कि इसको रीड किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन, और बिहेवियर ऑफ रिफ्रेश कैथोड रे ट्यूब मोल्ड किया जा सकता है। इससे पहले कि हम आगे जाएं हमने एक लफ्ज जो है यहाँ पे पिक्सल इस्तेमाल किए। पिक्सल जो है इसको हम पिक्चर एलिमेंट्स भी कहा जाता है या इसे एब्रीवेट करके PL भी कहते हैं। तो पिक्चर एलिमेंट जो है वो छोटे से छोटा एरिया है जिसे बगैर ओवरलैपिंग के इंडिपेंडेंटली रोशन किया जा सकता है स्क्रीन पर, और हर एक पिक्सल्स के लिए ब्लैक एंड वाइट के केस में हमें एक बिट जो है वो दरकार होगी फ्रेम बफर में, जिसके अंदर ये इंफॉर्मेशन मौजूद होगी कि कौन सा पिक्सल ऑन करना है और कौन सा पिक्सल ऑफ रखना है। इसके बाद जो है हम बिट मैप और पिग्स मैप जो है उसके बारे में बात करते हैं। सो इफ देयर इज black and white picture, then there is only one bit required to store 0 for black or 1 for white, and in this case buffer will be referred as bitmap. In color picture, obviously multiple bits are required for each pixel position depending on the possible number of colors. For example, to show 256 colors, 8 bit will be required for each pixel, and in case if multiple bits are used for one pixel, frame buffer will be referred on PixMap. So हर एक pixels के लिए depending upon the required color depth value जो है स्टोर हो रही होगी। जैसे कि हर एक पिक्सल की वैल्यू जो है वो 8 बिट में स्टोर कर रहे हैं, तो इस तरह से पिग्स मैप के अंदर हर एक पिक्सल्स के लिए 8 बिट और 1 बाइट जो है वो मौजूद होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिट्रेस। हॉरिजॉन्टल रिट्रेस जब एक लाइन या एक रो पिक्सल्स की इलेक्ट्रॉन बीम के जरिए से रिफ्रेश हो चुकी होती है, इसके बाद इस बीम को दूसरी लाइन के शुरू में आ जाना होता है। एज वी नो दैट के जैसे कि आपको पता है डियर स्टूडेंट कि आपकी जो स्क्रीन्स होती है, जो आपका इमेज होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, और आपकी जो स्क्रीन्स होती है उसमें रोज और कॉलम्स जो है में वो डिवाइड होती है की फॉर्म में होती है, और वो जो एक सेल होता है जो इससे रोज और कॉलम से बनता है जिसको हमने पहले डिस्कस किया था, वो आपका जो है एक पिक्सल्स होता है, वो आपका एक पिक्चर एलिमेंट भी उसे कह सकते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले हमने इसको डिस्कस भी किया, तो वो आपका एक पिक्सल होता है, वो एक सेल छोटा सा, ठीक है। और ये सारे मिल के जो है कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्सल जो है ये आपकी एक स्क्रीन जो है वो आपकी होती है, और फिर इसमें हमने जिस पिक्सल्स को अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट्स हमने रोशन करना होता है तो उसे हम रोशन करते हैं। अब आपकी जो रो है उसमें भी पिक्सल्स होते हैं,
कॉलम्स जो हैं उसमें भी पिक्सेल्स होते हैं। तो इसको ज़रा इस तरह समझें कि हॉरिजॉन्टल रिट्रेस, जब एक लाइन या एक रो पिक्सेल्स की इलेक्ट्रॉन बीम के ज़रिए से रिफ्रेश हो चुकी होती है, इसके बाद इस बीम को दूसरी लाइन के शुरू में आ जाना होता है। तो दूसरी लाइन के पहले पिक्सेल को रोशन किया जाता है और फिर इन लाइन इसी तरह बाकी के दूसरे पिक्सेल्स भी उनको भी रिफ्रेश करते हैं। इस सूरत में हम इस कैरेज रिटर्न इफेक्ट को हॉरिजॉन्टल रिट्रेस कहते हैं। फिर बारी बारी जितनी भी रोज हैं पिक्सेल्स की सारी रिफ्रेश हो गई और पूरी स्क्रीन इसी तरह रिफ्रेश हो चुकी है। इसके बाद फिर इस बीम ने पहली रो में जाना होता है, यानी पहली रो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में जाना होता है और फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से दोबारा रिफ्रेश का प्रोसेस होगा, तो उससे हम वर्टिकल रिट्रेस जो है वो कहते हैं। तो मींस हॉरिजॉन्टल रिट्रेस जो है इज रिट्रेसिंग और रिफ्रेशिंग ए न्यू लाइन। हॉरिजॉन्टल रिट्रेस जो है इज रिट्रेसिंग or refreshing a new line, and vertical retrace means refreshing the whole page all over again। जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया कि ये रिफ्रेशिंग का एक प्रोसेस है। एक सेकंड में इसने 60 बार रिफ्रेश होना होता है। इसका मतलब ये होगा कि पूरी स्क्रीन के ऊपर 60 टाइम जो है वर्टिकल रिट्रेस जो है वो होना होता है और हर 2 वर्टिकल रिट्रेस के दौरान हॉरिजॉन्टल रिट्रेस इतने ही होंगे जितनी की रोज ऑफ पिक्सेल्स होती हैं। इसके बाद हम एक और फिनोमेना जो है इंटरलेस्ड और नॉन इंटरलेस्ड के बारे में देखते हैं। आपने सुना होगा कि कुछ मॉनिटर्स के बारे में कि वो इंटरलेस्ड हैं या नॉन इंटरलेस्ड हैं। तो अभी इस कंसेप्ट को हम देखते हैं थोड़ी देर में। इंटरलेस्ड का फिनोमेना जो है कुछ इस तरह एक्सप्लेन किया जाता है कि अगर डिस्प्ले डिवाइस के ऊपर फॉर इंस्टेंस 100 रोज ऑफ पिक्सेल्स हैं, तो बजाय हम इस तरह करें कि हम पहली रो से शुरू करें और फिर 100 रो तक 1 बाय 1 सबको रिफ्रेश करें, तो रिफ्रेश के प्रोसेस को हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। फर्स्ट पास में हम ये करते हैं कि सिर्फ ऑड नंबर की रोज को पिक करते हैं, जैसे फर्स्ट रो हो गई, थर्ड रो, फिफ्थ रो एंड सो ऑन, सिर्फ उनको रिफ्रेश करते हैं। और जब आपकी 50th रो इसमें जो होगी, जब रिफ्रेश हो रही होगी, तो वो क्योंकि हम 1 रो स्किप कर रहे हैं ना, फर्स्ट रो, थर्ड रो, फिफ्थ रो, तो वो जो होगी वो आपकी 99th रो होगी इस केस में। और इसी तरह जब 99th रो जो है वो रिफ्रेश हो चुकी होती है, तो फिर वो वर्टिकल रिट्रेस का प्रोसेस शुरू होगा सेकेंड रो से, और फिर हम इवन रो को रिफ्रेश करते हैं, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स एंड सो ऑन। अब अगर आप इसमें देखें तो इसका फ़ायदा ये है कि आपके जो पिक्सेल्स होते हैं कंटिन्यूस जो है, इसका एक फ़ायदा ये होता है कि हम कुछ डिवाइसेस के अंदर रिफ्रेश रेट जो है बहुत ज़्यादा हाई स्पोर्ट नहीं किया जा सकता, तो उनमें भी कंटिन्यूस इमेज डिस्प्ले जो है उसका इफेक्ट हम हासिल कर सकते हैं। वो इस तरह होता है क्योंकि हर 2 कंसेक्टिव रोज ऑफ पिक्सल इतने करीब होते हैं कि उनमें से एक रिफ्रेश ना भी हो तो उसकी रोशनी को डिसअपीयर होने दें, तो फिर भी जो है आपके ओवरऑल इमेज की लुक एंड फील जो है वो ख़राब नहीं होती। तो ऐसे डिस्प्ले
जिनके अंदर बारी बारी ऑड और इवन लाइंस को रिफ्रेश किया जाता है, तो इनको इंटरलेस्ड डिस्प्ले जो है वो कहते हैं। और नॉन इंटरलेस्ड डिस्प्ले वो होंगे जो कि पहली रो से शुरू होते हैं और फिर दूसरी, तीसरी एंड सो ऑन। इसी तरह इन ऑर्डर सारी रोज को रिफ्रेश करके फिर पहली रो से रिफ्रेशिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका आज का पहला लेक्चर था। आज हम इतना ही जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे। अब आपको पता है कि LMS पे भी जो है ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करके वहाँ पे प्लेस की हुई हैं, आपने पढ़ी भी हुई हैं। फिर भी इसके बावजूद जो है अगर आपको किसी पॉइंट की या किसी भी टॉपिक की किसी भी जगह से आपको कोई फिर भी कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रही, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन जो है आप मुझसे ईमेल कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस, कॉल करके पूछ सकते हैं क्वेश्चंस या टॉपिक के बारे में। व्हाट्सएप का ग्रुप भी है हमारा, वहाँ पे अपना क्वेश्चन प्लेस कर सकते हैं। लेकिन ये कि कहीं से भी समझना है तो लाजमी पूछें। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़।